ऐसे ही है पापा? किसी को याद है क्या पढ़ रहे हैं आज हम? कौन है रीडर आज हमारे साथ? जशुआ चैप्टर 7। चले निकालें, अगर बाइबल है, हिंदी पंजाबी बाइबल जो भी आप पढ़ते हैं वो निकाल। और पहले मैं अंजना से कहूंगा पंजाबी में पढ़े, फिर हम हिंदी में इसको। हाँ जी। जोशुआ जोशुआ 7। सारे चैप्टर ब्रदर जी? हाँ जी, पढ़ दो, देखने मैं दसांगा फिर। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। पर इस्राएलियां ने मनसीह चीज विखे अपराध ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਰह ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਦ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਨਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯੀਰੋ ਤੋਂ ਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਤ ਆਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਤੇਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲਿਆਇਓ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗਏ ਅਤੇ ਆਈ ਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ੂਆ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ ਕੇਵਲ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਉਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ ਅਤੇ ਆਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਆਏ ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਾਰੀਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਢਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਪਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਠ ਪੁਆ ਲਈ ਹੈ, ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋ, ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਠ ਪੁਆਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸੁੱਟੋ। ਉੱਠ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੋਤ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਫੜੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਹੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੂਹੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਗੋਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਮੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰਹੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਯਰਾਹੀ ਦੀ ਮੂਹੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ
ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਬਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਯਹਰੇ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ, ਜਬਦੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਕਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਥੋਂ ਲੁਕਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਕਾਨ ਨੇ ਯਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਨਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਚੋਗਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਲਾ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਕੱਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਯਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਕਾਨ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ, ਚੋਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਲਦ, ਖੋਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕੋਰ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਥਰਾਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕੋਰ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। एक अच्छा जी, आज हम जो पढ़ रहे हैं, जो यशवा की किताब को हमने शुरू किया हुआ है, तो जो ना इनके यशवा ने जब इसराइलियों को मिस्र से निकाला, मूसा ने, उसके बाद हम देखते हैं कि बियाबान का सफर शुरू हुआ, या क्या उसको कहेंगे, जंगल बियाबान का सफर जड़ा। तो लेकिन खुदा का प्लान और मंसूबा ये था कि वो उनको वादे की जमीन पर लेकर जाए। वादे की जमीन जो थी उसमें उसको लेकर जाना एक बात है और उस पर कब्जा करना दूसरी चीज है। तो खुदा चाहता है कि वो उस जमीन पर कब्जा करे, और कब्जा वो इसी तरह हो सकता है कि खुदा की कुदरत और खुदा की ओबीडियंस के जरिए से। हमने देखा, पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि बहुत सारी कौमें जो हैं वो वादे की जमीन में आबाद हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है वादे की जमीन। ये वादे की जमीन जो थी, ये इब्राहिम को खुदा ने इब्राहिम और उसकी नस्ल को दी थी, जो कि आज इसराइली जिनको हम कहते हैं, और वो वापस आके वो अपना, अब उन्होंने उस जगह को खाली करवाना है। उस जगह को खाली करवाने के लिए उनको खुदा की ओबीडियंस में चलना पड़ेगा और खुदा की कुदरत और ताकत के साथ वो जगह को खाली करवाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो कौमें और कबीले जो वहाँ पे आबाद हैं, उनमें से एक, तो हमने अभी देखा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो यरू की दीवार गिरी और वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया। अब आगे हम देखते हैं कि एक और इलाका शुरू हो गया है, उसको आई बोलते हैं, आई बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में आई लिखा हुआ। तो खुदा का प्लान और मंसूबा जो था कि वो ये है, ईमानदारों के लिए और इसराइलियों के लिए ये था कि वो उस जमीन को, वादे की जमीन को पर काबज हों। तो उसके लिए उनको वो जगह खाली करवानी है, वो एरिया जहाँ पे बदरूहों ने कब्जा किया हुआ है, शैतान ने उस जगह को ले लिया हुआ है, उनको खाली करवाना है। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था मैंने कि ये जो हमारा इस दुनिया में जो सफर है, वो वादे की जमीन की तरफ सफर है। उसको हासिल करने के लिए जब हम पाक का बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम दरियाए यर्दन पार कर लेते हैं, उसके बाद एक जंग शुरू होती है, एक ऐसी जंग जिसको हमें
فتح کرنا ضروری ہے، اور وہ ہم خدا کی قدرت سے اور خدا کی اوبیڈینس سے اور اس کے حکموں پر عمل کر کے اس کو مان سکتے ہیں، اس پر فتح پراپت کر سکتے ہیں، یا فتح پر اس پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیون میں بہت ساری جنگیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں، جیسے مطلب غصے کی اسپرٹ ہے، لڑائی جھگڑے کی ہے، بدخوئی کی ہے، اور اور جھوٹ کی ہے، اس طرح کی بہت ساری عادتیں جو ہمارے اندر سے جو جو ہمیں خدا کی حکم عدولی یا خدا کا حکم کے خلاف ہیں، جو چیزیں ہماری عادتیں جو اس کے خدا کے حکموں کے خلاف ہیں، وہ جو ہے ان کی صفائی ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جگہ جو ہے مطلب ہمارا جسم لکھا ہے کہ تمہارا جسم کیا ہے، تمہارا بدن زندہ خدا کا مقدس ہے، اور اس میں سے صفائی جو ہے روز بروز ہونی ضروری ہے۔ تو وہ یہ جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ یسوع کے آنے تک یہ چلتی رہے گی، ہر کسی کو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں، اور خدا ہر جیسے جیسے ہم ان بدروہوں پر اور ان ایریاز میں قبضہ حاصل کرتے ہیں، فتح حاصل کرتے ہیں، تو یہ بدروہیں جو ہیں یہ ہماری زندگی سے بھاگتی چلی جاتی ہیں اور دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ یاد رکھے کہ ہمیں کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اندر جب ویکنیس آتی ہے تو ابلیس کو اس ایریا کو دوبارہ سے چھیڑنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ویکنیس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم خدا کی حکموں کو نہیں مانتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو پھر ہمیں ٹارمنٹ کرنے کا اور ہمیں تکلیف دینے کا ایک موقع یا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے دروازے ہیں یہ گریجولی یسوع کے آنے تک ان کو ابلیس کے لیے بند ہوتے جانا ہے، اور تاکہ ہم اس وعدے کی زمین پر قبضہ کر سکیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مصیبت جو اسرائیلیوں کو فیس کرنا پڑی جب وہ وعدے کی زمین میں آ گئے ہیں، اور یہ سٹوری آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایکن جو تھا اس نے وہ جو کرس کی ہوئی چیزیں تھیں، اکرسڈ تھنگز، یعنی کہ مخصوص کی وہ چیزیں جن کو ہاتھ لگانا منع تھا یا جن کو نہیں لینا چاہیے تھا، اس نے وہ چیزیں لے لیں۔ تو اس وقت کے حساب سے خدا کے حکم کو اس نے نہیں مانا، اور خدا نے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چیپٹر میں یشوع نے 6ویں چیپٹر کی میرے خیال 18ویں آیت میں یشوع نے ان کو کہا تھا کہ تم مخصوص کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیا کرنا؟ تم مخصوص کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یا تم کو ان کو نہیں لینا، نہیں چھونا، اور وہ کیونکہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہی کچھ کیا جس سے خدا نے منع کیا تھا۔ جیسے کہ ہم ہوا اور آدم اور ہوا کے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا تم باقی ساری چیزیں لے لینا، باقی سارے درختوں کا پھل کھانا، لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسی درخت کا پھل کھایا، اور کیا کیا؟ انہوں نے خدا کے حکم عدولی کی، اور اس کا نتیجہ ان کو پھر بھگتنا پڑا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر خدا نے ان سے کہا تھا کہ تم مخصوص کی ہوئی چیزوں کو، یعنی کہ وہ چیزیں جن کو خدا نے منع کیا ہے، وہ تمہارے لیے ایک قسم کی کرس بن جاتی ہیں، لعنت بن جاتی ہیں اگر ہم ان کو لے لیتے ہیں ہماری زندگی میں۔ تو اسی طرح ہم اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے جو ہمارے خدا کی تعلیمات کے منافی ہے یا اس کے اگینسٹ ہے۔ جیسے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں لوگ مورتیاں رکھتے ہیں، وہ آگے موم بتیاں جلاتے ہیں، اس طرح کی کوئی اسٹیچوز اور ایسی تصویریں جو ہے بڑی عجیب عجیب قسم کی پکچرز لوگوں نے لگائی تھی، ڈرونی قسم کی، کئیوں نے اسکل یعنی یہ کھوپڑی رکھی ہوتی ہے گھروں میں۔ ادھر کبھی جاتے ہیں تو بڑی بھیانک قسم کی یعنی کہ ہمیں یعنی کہ ڈرانے والی ایسی شبیہیں نظر آتی ہیں۔
تو مطلب یہ ہے کہ یہ اور یہ جو چیزیں ہیں جو ان کی ہماری عام زندگی میں بھی ان کو گھر کی صفائی ہونی چاہیے، اور ہمارے روحانی طور پہ بھی ہمارے اندر سے جو بت ہیں، جو صفائی ہے ہمارے اندر سے، وہ ہوتی رہنی چاہیے۔ تو جو کرسڈ چیزیں تھیں، جو کہ مخصوص کی ہوئی چیزیں تھیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ان چیزوں کی مورتی پوجا کرتے ہوں، وہ ان کے لیے مخصوص تھیں، وہ جو ائی کے لوگ جو تھے، تو خدا نے کہا کہ ان کی جو چیزیں ہیں، جو جن سے وہ مورتی پوجا اور اس طرح کی جو اپنی رسومات کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو تم نہیں لینا، اپنے گھروں میں نہیں لانا۔ تو لیکن جو جس چیز سے خدا نے ان کو منع کیا تھا، وہ انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے پوری قوم اور قبیلے کے اوپر کیا آیا؟ مصیبت آئی۔ تو کئی دفعہ کسی ایک بندے کی وجہ سے گھر میں مصیبت آتی ہے کہ اب پورا ایک قبیلہ ہے، لیکن ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا کہ وہ جنگ جو تھی وہ ہار گئے، جو کہ ایک عام جنگ، وہ زیادہ مشکل جنگ نہیں تھی، بہت تھوڑے سے لوگ تھے ائی میں، اور یہ جنگ وہ آرام سے جیت سکتے تھے، لیکن کیونکہ گناہ تھا قبیلے میں، تو وہ اس کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے وہ ہار گئے۔ اسی لیے ہمیں مجموعی طور پر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے معافی کی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ان کو معاف کر، خدا جیسے کہ کئی دفعہ بچے جوانی میں غلطیاں کرتے ہیں، کئی غلط فیصلے کر لیتے ہیں، تو ہمیں کیا ایز اے پیرنٹس ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے لیے پریئر کرنی چاہیے، ان کے لیے شفاعت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا، ایوب کیا کرتا تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایک کے لیے قربانیاں چڑھاتا تھا، جو کہ سوفتنی قربانیاں چڑھایا کرتا تھا اپنے بچوں کی خطاؤں کے لیے۔ وہ کہتا تھا کہ کہیں انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو وہ کیا بائبل میں لکھا ہے، پہلے ہی چیپٹر میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایوب جو تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے ان کے گناہوں کے لیے قربانیاں چڑھایا کرتا تھا۔ تو اس لیے کئی دفعہ ہمارے خاندانی شاید ہم خود تو بہت اچھا چل رہے ہوں، ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل میری وائف ہے، وہ خدا کے ساتھ بہت سیریس ہے اور بہت وفاداری سے خدا کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن میں شاید وہ اتنا مضبوط نہیں ہوں، یا میں کچھ ایسی غلطیاں کرتا ہوں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو خدا جو ہے یعنی کہ میری وجہ سے میرے خاندان میں کیا آ سکتی ہے؟ لعنت آ سکتی ہے، اور اسی لیے ہمیں جو کہا گیا ہے کہ ہم بچے، ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، تاکہ یہ قرض جو ہوتی ہیں ان کا اثر جو ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں، اور یہ لعنت جو ہے وہ لعنت نہ آئیں۔ اور بات رہی جہاں تک ایمان کی، کیونکہ یہ جو نئے عہد نامے کا سفر ہے، یہ نئی زمین کا جو سفر ہے، سوری نئے یروشلم کا یا جو وعدے کی زمین کا جو سفر ہے، یہ ایمان کی جنگ ہے۔ ایمان کے بغیر، ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور یہ جو جنگ پہلے بھی انہوں نے جیتی، جب یرو کی دیواریں گر گئی تھیں، تو وہ بھی ایمان کی جنگ تھی، ایمان سے ہی، کہ یشوع کو ایمان تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہی ہماری خاطر، یا خدا نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے جنگیں لڑوں گا۔ تو جیسے خدا نے کہا تھا ویسے ہی ہوا کہ وہ بڑی بڑی دیواریں جو تھی، وہ یرو کی دیواریں نیچے گر گئیں۔ تو بیسیکلی ایمان کی ایک جنگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں ان کا اثر نہیں ہوگا، اور نہیں ہو سکتا۔ ابلیس اپنا زور مارے گا، لیکن اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ مجھے یاد ہے ایک میرے بردر نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا ہمارے چرچ میں، کہ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں کویت میں تھا، تو کچھ خدا کے خادم
वो साउथ इंडिया में खिदमत करने के लिए गए, 8-10 पास्टर थे वो, उन्होंने कई साल पहले की बात है, किसी एक चर्च, एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। तो रास्ते में उनको उन्होंने कहीं किसी दूसरे गांव में प्रीचिंग के लिए जाना था या मनादी करने के लिए जाना था। तो वहां पे रास्ते में उनको भूख और प्यास लगी, तो उन्होंने कुछ खाने के लिए नहीं था उनके पास, तो उन्होंने रास्ते में उनको कुछ एक जो सड़क सड़क किसी जंगल में ही एक कोई पत्थर वगैरह रख के, तो कोई किसी ने मंदिर बनाया हुआ था। तो और वो बियाबान था, जंगल था, कोई दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था। तो वहां पे लोग कुछ नारियल पड़े हुए थे, तो उन सब ने वहां से नारियल उठा के वो जो उधर जो पत्थर था या जो मूर्ति थी उसके सर पर मार कर उन्होंने तोड़कर खा लिया, पी लिया। और उनका, जिनका ईमान था उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो एक एक पास्टर नया जो बिलीवर था, उसने बेईमानी से उसको ले तो लिया, लेकिन बेईमानी से उसने पिया और खाया। तो उससे क्या हुआ कि उसी रात उसको ना उसके सर में दर्द शुरू हो गई, और वो चीज, मतलब ये कि जो होता है ना, जब आपके पास ईमान नहीं है तो जो इवल स्पिरिट्स है जो होती हैं वो काउंटर अटैक या अटैक करती हैं और वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो मतलब बात करने का ये है कि जो जो नए यरूशलेम की जो जंगें हैं वो हम ईमान से जीत सकते हैं। तो जो कर्ज की हुई चीजें हैं उनको हमें अपनी जिंदगी से निकालना है। जो अकर्स्ड थिंग्स हैं, मखसूस की हुई हैं, जो हमारे लिए नहीं है, जिनको खुदा ने हमारे लिए हराम ठहराया है, उनको हमारी जिंदगी से, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मतलब कह सकते हैं या कि ये हमारे लिए नहीं है। तो उनको हमने अपनी जिंदगी से एक एक करके निकालना है, ताकि अंदर की सफाई हो और खुदा के गजब से और खुदा के क्रोध से हम बच सकें और हम फतहमंद जिंदगी गुजार सकें। तो आज हम देखते हैं कि यशवा की किताब का 7वां चैप्टर की पहली आयत जरा पढ़े, वफा या सबा या जो भी पढ़े, उर्दू में पढ़े जरा, पंजाबी में हमने देख लिया। पहली आयत ना 7वें बाब जी। की। मखसूस की खयानत की, क्योंकि अकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जराया ने जो यहूदा के कबीले का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। सो खुदावन का कहर बनी इस्राएल पर भड़का। और यहोशू ने से जो बैत की में बैत आमद वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क हाल करो। लोगों ने जाकर किया, यहोशू के पास लौटे और उसने आपकी कहा आवाज कट रही है। जाए और 2-3 हजार चढ़ जाएं और अय्यो मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनांचे लोगों में से 3 बस वफा, आवाज कट रही है आपकी, वफा की आवाज कट रही थी। तो चले मैं पढ़ता हूँ। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीजों में खयानत की, क्योंकि अकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जारा ने जो यहूदा के कबीले का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। तो खुदावन का कहर बनी इसराइल पर भड़का। तो खयानत की, उसने क्या किया? खयानत की मतलब उसने फ्रॉड किया, जैसे आप कह लें कि फ्रॉड करना होता है। तो उसने उन मखसूस की, खुदा ने जिन चीजों से मना किया था वो उसने ले ली। और यशवा ने सॉरी, ये सारा वाकया हो रहा है, ये उन चीजों में से ले लिया जो जब वो वहां से निकले थे, यरू की दीवारों से जब गिर गई थी। तो इस वक्त क्या हुआ था कि ये
ये अक्कन ने क्या किया, कुछ चीजें उसमें से ले ली थी। अब एक जंग इन्होंने जीत ली है, लेकिन वहां से एक बंदे ने फ्रॉड किया है, तो उसका असर जो है पूरे कबीले पर और पूरी कौम पर उसका असर हुआ है। अब उसके आगे एक और जंग है। तो जो हमारी जंगें होती हैं, उनमें फेलियर, या अगर उनमें फेलियर आता है, अगर हम जंग जीत नहीं जीते, तो उसमें एक वजह ये हो सकती है कि हमारे अंदर गुनाह है, या हमारे अंदर कोई ऐसी नाफरमानी है। कई दफा गुनाह नहीं होता, लेकिन हम नाफरमानी कर देते हैं, खुदा कुछ कह रहा होता है, हम कुछ कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अक्कन ने क्या किया था, वो जब यरू की दीवारों से गिरी और वहां से ये चीजें लेकर इसने क्या किया कि वहां से कुछ चीजें निकाल ली। सो यीशुआ ने यरू से आई को, जो बैतेल के मशरकी सिमत में बैतान के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया, और वो यीशुआ के पास लौटे और उससे कहा, सब लोग ना जाएं। अच्छा, यहाँ पे फिर खुद हम देखते हैं कि यीशुआ ने कुछ लोगों को जिस तरह पहले जासूसी करने के लिए भेजा था, इसी तरह उसने इधर यरू का जासूसी करने के लिए भेजा था 2 को। अब इधर भी उसने कुछ लोगों को आई में जाकर जासूसी करने के लिए भेजा, और वो यीशुआ के पास लौटे और उससे कहा, सब लोग ना जाएं, फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चनाचे लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भागे, और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए, और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार कर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे ये थोड़ा सा शायद उनमें गुरूर आ गया है कि उन्होंने जो कासद भेजे थे, या जो जासूसी करने के लिए भेजे थे, उन्होंने कहा नहीं, फिक्र ना करो, बस थोड़े से लोग हैं, हम इनको ऐसे आराम से फतह कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये उन्होंने अपने जोरे बाजू पे ये जंग जीतने की कोशिश की। याद रखिए कि जंग जो है वो खुदावंद की है, तो खुदावंद ही जगह जंग जो है हमारे लिए जीतेगा। तो हमारा पार्ट जो है वो बहुत थोड़ा सा है। हमारा पार्ट या हमारा हिस्सा जो है जंग जीतने में वो बहुत थोड़ा है। हमें ओबीडियंस में चलना है, हमें खुदावंद की वफादारी में और खुदावंद की हुक्मों पर चलना है। तो खुदावंद का जो बाकी जंग जो है वो खुदा ने हमारे लिए जीतनी है। तो यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि जैसे कि वो अपने जोरे बाजू पर इस जंग को जीतना चाह रहे हैं, और वो उन्होंने एस्टिमेट कर लिया कि ये जंग तो कोई हमारे लिए, हमारे आगे कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा ये तो थोड़े से लोग हमें चाहिए, हम जाके बस कितने कुछ चंद हजार लोग हम जाएं और जाके 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और रही को मार लें। तो इससे ये महसूस हो रहा है कि वो अपने जोरे बाजू पर, इस जंग छोटी है या जब जंग बड़ी है, वो जीती तब ही जाती है जब खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ होगा, और जब हम वो हमारे लिए जंग जीतेगा। तो अब यहाँ क्या हुआ है कि ये जंग तो छोटी थी, लेकिन खुदा इनके साथ नहीं था, और इसलिए क्या हुआ कि वो वहां पर चढ़ गए, और जब ये आई वालों ने इन पर वापस हमला किया, तो क्या हुआ कि 36 लोग इसराइली मारे गए, और वो इसराइलियों को रेंगते हुए पीछे को उन्होंने धकेल दिया। और लिखा है कि सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। इसका क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा डर गए वो। जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले क्या काम होता है, डर पैदा हो जाता है। याद है ना, आप कभी भी देख लें, कोई सेहत खराब हो गई है, तो सबसे पहला काम होगा कि डर पैदा हो जाएगा, मुझे पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। जब कोई कोई पैसे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, पैसे नहीं है, तो सबसे पहले डर पैदा होगा कि किराया कहाँ से देना है, खाना कहाँ से पूरा होगा,
फीसें कहाँ से आएंगी, ये ना, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बिल कहाँ से पे होंगे। तो सबसे पहले क्या हमारे जिंदगी में आता है, जब भी हमें नाकामी होती है किसी काम में, या जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो सबसे पहले क्या होता है, डर पैदा होता है। तो डर जो होता है वो फिर और ज्यादा हम डाउन चले जाते हैं। तो क्या लिखा है, इनके दिल में जब इनको मार पड़ी है, आई के लोगों से 36 लोग जो उन्होंने मार दिए, तो क्या लिखा है कि सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। पिघल कर पानी की तरह होने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल बेजान हो गए, और उनके अंदर डर और खौफ जो था वो बैठ गया। तो हम आगे पढ़ते हैं 6वीं आयत में, तब यशुआ और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावन के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। जबकि लिखा है कि ये अब देखे कि क्या लिखा है, सब ने, इसका मतलब है कि उसमें हो सकता है कि काहिन भी हों, तो काहिनों के लिए तो एक खास नियम या कानून ये था कि तू अपने कपड़े ना फाड़ना। आपको याद है ना कि कपड़े फाड़ने का क्या मतलब होता है। तो कपड़े जो है वो हमारी नंगापन को ढांकते हैं। याद है ना, जब कपड़े लोग क्यों पहनते हैं, कि अपना नंगापन, अपनी शर्मिंदगी को ढांकने के लिए। तो जो खुदा ने, जो काहिन थे, उनके लिए एक कानून मुकर्रर कर दिया था कि नियम ये है कि तू अपने कपड़े ना फाड़ना। अगर किसी को याद हो कि जो जब खुदाम यीशु मसीह से उसने कहा, सरदार कहने कि क्या तू खुदा का बेटा है, तो यीशु ने कहा था कि हाँ मैं हूँ। तो उस क्या लिखा है कि उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। तो कपड़े फाड़ना जो है वो एक मकरू अमल है खुदा के नजदीक। इसको अगर हम देखना चाहें, कौन वफा पढ़ेगी मेरे साथ, किसी को मैं हवाला बताता हूँ, कोई है जो पढ़ सकता है। वफा सिस्टर का नेट खराब है, कोई और पढ़ ले। अच्छा तुसी पढ़ दो फिर, हैं कौन अपना जी। 7 वर्स। नहीं हाँ ये होगा अंजीलों में होगा, मत्ती की अंजील 26 चैप्टर उसकी 65 वर्स में। मत्ती दी अंजील 26 चैप्टर हाँ जी। 65 वर्स वर्स 36। वर्स 65 65। हाँ जी। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਕੁਫਰ ਵਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਫਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। अच्छा बस इतना ही काफी है। अच्छा ये देखें फिर एक पढ़े इधर मार्कस की अंजील और उसका 14 चैप्टर 63 वर्स। ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਫਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। हाँ लेकिन हम लिविटिकस में पढ़ते हैं, ये पढ़े लिविटिकस कौन सी बुक है, अखबार दी किताब पढ़ो जरा, उसका 21 बाब और उसकी 10वीं आयत में पढ़ेंगे। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ? मैं दसदा ਲੇਵੀਆਂ। लेवियां दी किताब ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ चैप्टर 21 ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ। ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨ ਹੈ,
वो अपने कपड़े की करे ना फाड़े, यही लिखा है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये इनमें महान, इसमें जाजक भी थे, महान जाजक भी थे, ये सब ने क्या किया, इधर क्या लिखा हुआ है कि तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने बुजुर्गां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਹਨ, ਮਹਾਨ ਜਾਜਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਜਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर ऊंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। और इन्होंने यानी क्या किया कि ये एक किस्म का सोग मना रहे हैं अपनी, जो इनको अम, जो इनको नाकामी हुई है, जो शिकस्त हुई है, उसके लिए क्या करते हैं, ये मातम कर रहे हैं, अपने सर पर क्या करते हैं, खाक डालते हैं और अपने अब मुंह ऊंधे पड़े रहे अपने, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ मॉर्निंग। और फिर हम इससे ये भी हमें पता चलता है आगे जाके कि ये एक किस्म का गिला कर रहे हैं या एक किस्म का खुदावंद के साथ शिकायत कर रहे हैं कि ये तूने क्यों होने दिया। और यशोआ ने कहा, हाय ए मालिक खुदावंद, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने की खातर इस कौम को यरू के पास इस पार क्यों लाया। ये 7वीं आयत पंजाबी च पढ़ो जरा, 7वें चैप्टर दी यशवा दे। हाँ जी, सतवीं ते 7ਵੀਂ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਚੰਗਾ हाँ, ਹੀ बस ਹੁੰਦਾ इन्हें ਜੇ काफी, ਅਸੀਂ बस इन्हें ही काफी, इन्हें ही बड़ा। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ बुरा भला क्या, और तेरी वजह नाल इंज होया, तेरी वजह नाल इंज होया। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने अंदर, कहते हैं पंजाबी च कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो नहीं। तो हम पहले अपना देखे कि हमने क्या गलती की है, ये जो मुसीबत आई है। इन्होंने क्या किया कि फौरन से पहले खुदा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तू तो सानू इसलिए लाया है कि सानू यरदन च इस तरह इस कौम को यरदन के इस पार क्यों पार लाया, यानी कि तू इतने अमूरियां दे हत्थों सानू मरवाण लिए लाया सा। तो ये एक नेचुरल रिएक्शन है, जो हम जब भी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम फौरन से पहले इसका किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम धरने की कोशिश करते हैं, जो हमारे फेलियर्स हैं। ओ मैं तो इसलिए मेरे ते मुश्किल आई है, मतलब जब हम फेल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेल होना कोई साधक जो होता है, बाइबल में लिखा है कि साधक 10 बार भी गिरे तो क्या होता है, उठ खड़ा होता है। फेलियर लाइफ में आएंगे, हम फेल हो सकते हैं, लेकिन क्या हम फेल पड़े रहेंगे, हम फेल ही रहेंगे? ये जो है ना, ये खतरनाक पोजीशन है। तो हम क्या करें, जब हम गलती होती है हमारी जिंदगी में, जब हम फेल होते हैं, तो हम फेल होके उस फेलियर पर मातम नहीं करते रहते, बल्कि हम दोबारा से उठ खड़े होते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर से, यानी कि जो भी हमारी इस्लाह है, जो गलती हमने की है उसकी इस्लाह करके, उसकी तौबा करके, और हम दोबारा से अपना सफर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो खुदावंद जो है हमारा खुदा, वो हमारी गलतियों कोताहियों को खातर में नहीं लाता, जब हम इकरार कर लेते हैं, जब हम मान लेते हैं। तो इसलिए कलाम में लिखा है कि साधक जो है 10 बार गिरता है तो फिर भी उठ खड़ा होता है। लेकिन जो तुंद जो क्या, एक तो रास्तबाज होता है, दूसरा कौन होता है, ना रास्त आदमी, जो बद किरदार होता है, वो जब गिरता है तो वो गंद में क्या होता है, वो पड़ा ही रहता है। एक सुअर में, और शीप जो होती है, या जो सूर है, और एक होता है शीप को क्या कहेंगे, ਭੇਡ। भेड़। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। भेड़ दे विच ते जेड़ा सूअर दे विच की फर्क है? सूरनी अगर गंद में गिरती है ना, गंद के किसी खड्डे में गिरती है, तो वो सूरनी उसको एंजॉय करना शुरू कर देती है, उस खड्डे में से जितना गंद होता है
उसी में वो लिपटना शुरू हो जाती है और उसी को खाना शुरू कर देती है। तो सूरनी जो गंध को, सूअर जो होता है गंध को एंजॉय करता है, लेकिन जो अगर जो भेड़ जड़ी है या भेड़ जो है वो अगर गंद में गिरे तो वो किसी खड्डे में गिरे तो वो उसमें से निकलने की कोशिश करती है। तो ये रास्तबाज में और बेरास्त और जो काजरो आदमी है उसमें फर्क ही होता है। जो खुदा के लोग हैं जब वो गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा उठने की कोशिश करते हैं और वो उस गंद में और उस नाकामी में पड़े नहीं रहते, बल्कि वो दोबारा से फिर से अपनी इस्लाह करके खुदा उनके खौफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये ये जो दुनिया का जो सफ़र है, ये इस तरह हम इसको अगर ये अपनी नाकामी पर ही मातम ही करते रहते हैं जैसे अभी वो कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं कि वो रोते हैं, वो अपने सर पे उन्होंने क्या कहते हैं सिर से उन्होंने खेप आई, अपने कपड़े फाड़े और मुंह ऊंधे मुंह यानी कि पड़े रहे और खुदा के साथ गिला करते रहे। तो फिर वो कभी कभी भी वो अगली जंग जो है वो नहीं जीत सकते थे। लेकिन खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात की, आगे जाके मैं अभी पढ़ता हूँ उसको। अब हम देखते हैं कि वो ए मालिक इसराइल ये 8वीं आयत में लिखा है, ए मालिक इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूँ। अब यशुआ जो है वो गिला कर रहा है खुदा के साथ, क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा। अब देखें कि ये वो यशुआ है जिसको खुदा ने कहा था कि जहां तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। याद है ना? तू फक्त क्या हो जा, मजबूत हो जा, खौफ ना कर, बेदिल ना हो। ये हमने पिछले पहले चैप्टर में यशुआ की किताब में पढ़ा। ये वो आदमी है जिसको खुदा ने बड़े उसके उसको बड़े बड़े जरिए उसके वसीला से बड़े बड़े काम किए। यरदन के दरिया के 2 टुकड़े कर दिए, पूरी कौम को उधर लेकर आ गया। फिर हमने देखा कि खुदा ने बड़ी बड़ी दीवारें जो थी यरू की वो इसके सामने से गिरा दी। अब ये यहाँ कह रहा है यशुआ एकदम से जैसे ही नाकामी आती है, हम खुदा की सारी जो होती हैं वफादारियां जो होते हैं पीछे, हम खुदा ने जो हमें दिखाई कामयाबियां और वफादारियां, उन सबको हम भूल जाते हैं जब एक दफा हम मुसीबत आती है। तो क्या लिखा है खुदा ने अब यीशुआ कह रहा है कि क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। अब ये देखिए ये वही यीशुआ है जिसके साथ खुदा ने कलाम किया था कि मैं जहां जहां तेरे पाँव का तलवा टिकेगा मैं वो जगह तुझे दूंगा। तो इसको खुदा के वादों पर खड़ा होना चाहिए था, ना कि नाकामी के ऊपर। तो ये एक इंसानी जिबिलत है, इंसानी रिएक्शन है फेलियर की तरफ और नाकामी की तरफ, और जब मुसीबत आती है तो उसकी तरफ हमारा जो एक कॉमन रिएक्शन है यही है कि अब खुदावंद ने हमें छोड़ दिया है, उन्हें हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम किसी और के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। और 10वीं आयत में लिखा है कि और खुदावंद ने यहोशू से कहा उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है। अब देखिए खुदा नहीं चाहता कि हम हर वक्त मातम करते रहें। ये ऊंधे मुंह पड़ा है और गिले शिकवे कर रहा है, तो खुदा ने उसे कहा कि चल उठ खड़ा हो, काम कर। ठीक है। तो ये है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, हम अपनी की कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, अपनी रवशों को ठीक करें, अपनी गलतियों को तस्लीम करके उनको दुरुस्त करें और फिर हम आगे बढ़े जंग के लिए दोबारा से तैयार हो। तो क्या लिखा है, क्योंकि खुदा ने कहा उठ खड़ा हो। खुदा ने उसकी साथ ज्यादा वो उसके गिले शिकवे जो है ना उस पर उसके जवाब देने की कोशिश नहीं की। खुदा ने सीधा सीधा उसको कहा उठ, गेट अप, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है। इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने इस उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। तो खुदा ने कहा कि तो उन्होंने आज अगर इन पर मुसीबत आई है तो उसका क्या वजह है। सिंपल सा जवाब है उसका, कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं है। पहला पहला उस खुदा ने उसको हुक्म दिया उठ, गेट अप। दूसरा उसने कहा कि उन्होंने गुनाह किया है भाई, तो उन्होंने गुनाह किया और उठ खड़ा हो। तो उन्होंने मखसूस की चीज़ों में से कुछ ले लिया
کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کیا اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا. تو دیکھیں کہ خدا نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ ہوا ہے. اور وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے. جب ہم قرض کی ہوئی چیزوں کو اکرسڈ چیزیں جو ہوتی ہیں جن کو لینا منع ہے، اگر ان کو ہم رکھ لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں تو کیا ہے، تو وہ ہمارے لیے وہ ہم ملعون ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر وہ مصیبت آتی ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور ہمیں اس سے توبہ کرنی پڑتی ہے. تو یہ انہوں نے خدا نے کہا کہ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزیں لے لی تھی اور وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے. تو میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو. اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے. تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کرو. سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک کر کے گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے. تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہو وہ پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ خدا نے اب صفائی کا پڑ صفائی نہیں ہوتے جیسے کہتے ہیں نا پڑ صفائی شروع ہوگی، یعنی کہ جب ایک ٹائم آتا ہے نا سال میں جب ندی نالوں کو نیچے سے جو ان میں کچرا جمع ہو جاتا ہے اس کو صفائی کرتے ہیں. تو خدا نے قوم کو، قبیلے کو، گھروں کو صفائی کرنے کا ایک انتظام کیا ہوا ہے. تو وہ کرتا رہتا ہے، خدا کی صفائی کا کام وہ شروع رہتا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو قبیلے کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، پھر آدمی کے حساب سے ایک ایک کر کے ان کو میرے سامنے لاؤ، اور جو پکڑا جائے اس کو اور اس کی ساری چیزوں کو کیا کرو، آگ سے جلا دینا. اور یہ صفائی کا عمل جو ہے تاکہ یہ جو مکروہ جو کام ہوا ہے، ملعون ہوا ہے، اس کا اثر باقی قبیلے پر نہ پڑے. تو پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا. پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا اور زارا کا خاندان پکڑا گیا. اب دیکھیں کہ یشوع جو ہے پھر صبح سویرے اٹھ رہا ہے. ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں یشوع نے پتہ لی ہے وہ صبح اٹھ کے کام کرتا ہے. ہم نے اس کتاب میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ یشوع کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ اپنا کام صبح صبح ہی شروع کر دیتا ہے. تو اس نے آج بھی کیا کیا کہ صبح سویرے پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا. پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا اور زارا کا خاندان پکڑا گیا. پھر وہ زارا کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو قریب لایا اور زبدی پکڑا گیا. پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو قریب لایا اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا جو یہودا کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا. تب یشوع نے اکن سے کہا کہ خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر، اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا. تو یعنی کہ اب اس کا یہ چور پکڑا گیا ہے جس نے یہ سارا کام کیا. اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کا خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے. اور جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر، 200 مسکال چاندی، 500 مسکال سونے کی ایک اینٹ
देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया, और देख मेरे डेरे में ज़मीन में छुपाई हुई हैं, और चांदी उनके नीचे है। तो लालच जो है क्या है, बुत परस्ती के बराबर है। उसने क्या, उसका दिल ललचा गया। कहाँ लिखा है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है? हम सैमुअल की किताब निकालें जरा, सैमुअल की किताब, लालच कोई है पढ़ने वाला पंजाबी में, या सैमुअल की कौन सी किताब? पहला सैमुअल, केड़ा सैमुअल? एक मिनट, अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ देना मुझे। नहीं सैमुअल केड़ा? पहला सैमुअल के पहला सैमुअल है। पहला सैमुअल केड़ा? अच्छा, ये मुझे मिल नहीं रहा, अगर किसी को मिल जाए तो मेरी हेल्प कर सकता है। ये है जो लालच जो है बुत परस्ती के बराबर है। इसको सैमुअल को की किताब में इसका कहीं जिक्र है, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रहा। जब आप इसको, अगर आप अलहदा से पढ़ना चाहें, तो जब सैमुअल नबी उसको मिला था साउल बादशाह को, तो उसने कहा था कि लालच जो है बुत परस्ती के बराबर है। तो ननी का अगर मिल गया तो दसो किस मिल गया। हाँ हाँ, मिल गया। पहला सैमुअल 15 बाब 15 चैप्टर 23वीं आयत। क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तश। सो चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। ठीक, नहीं, लालच बुत परस्ती के ये नहीं है बेचारा। अच्छा, बहरहाल बगावत और शायद जादूगरी है। है बगावत और कितना जादूगरी है जैसी मूर्तों और बुतों की बगावत है। है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तश। हाँ, चलो, मुझे मेरा ख्याल है मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। तो बहरहाल बात ये है कि जादू लालच जो है वो मुझे वो जो मैं आयत ढूंढना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिली। लेकिन ये बात है कि खुदा लालच जो होता है वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जो एकदम अमीर होने के ख्वाब देखते हैं ना, रातों रात अमीर होने के, वो कई दफा गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। जैसे कि ये चोर डाकू और राहजनी और इस तरह के जो काम करते हैं, जो खुदा के नजदीक मकरू हैं, तो वो एकदम से अमीर होने की कोशिश करते हैं, और इस तरह वो एक दिन आता है कि वो क्या होता है, वो पकड़े जाते हैं। तो इसलिए इफ्सियों 5 सियों चैप्टर ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ आयत मेरे ख्याल है पांच कहानी में, पांच चैप्टर है। है ना। क्योंकि हम्म, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत प्रस्त के बराबर है, मसीह लालची और की जो खुदा बुत। की बराबरी में कुछ मिरास नहीं। हाँ, दोबारा पढ़ी जरा, दोबारा पढ़ी। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार
या नापाक या लालची की जो बुत प्रस्त के बराबर है। मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। हाँ, अब देख ले ये बात इधर कैसे पूरी हो रही है। इसकी मैरास ही खत्म हो गई है। ये जो अकन जो था उसको पूरे उसकी सारी चीजों के साथ क्या क्या किया किया गया, जला दिया गया। तो उसकी कोई मैरास नहीं है, यानी कि उसको कोई उस नए वादे की जमीन में उसको कोई हिस्सा नहीं मिला। तो क्या लिखा है कि लालच जो है वो क्या है, बुत प्रस्ती के बराबर है। थैंक यू रानी लबन दली, थैंक यू। तो साबित हुआ कि लालच, उसने ललचा गया उसका दिल, उसने लालच किया, जो चीजें नहीं लेनी चाहिए थी उसने सोना चांदी और इस तरह की चीजें देखी और उसने क्या किया, उनको ले लिया और उसका सारा अंजाम जो है बुत प्रस्ती के बराबर है और उसका कोई मैरास नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है अब वादे की जमीन। बस यशुआ ने कासद भेजे, वो उस डेरे को दौड़े गए और वहां देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। अच्छा, मैं लालच के बारे में थोड़ी सी और बातें कर दूं। कई दफा हम यू नो जॉब्स पे लोग कुछ चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो कई दफा चोरी करने को दिल करता है। कई दफा बच्चे किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल उठा कर ले आए। आप इन छोटी छोटी चीजों को क्या करें, नेग्लेक्ट ना करें, नहीं तो वो बड़ी चीजें बन जाती हैं। अगर बच्चा कुछ ऐसी चीज ले आया है जो कि उसकी नहीं है, तो उससे पूछें कि कहाँ से लेके आया भाई, ये तो तेरी नहीं है, वापस करके आ, चल वापस करके आ। हैं? मुझे याद है, मुझे एक दफा मार पड़ी थी अपने अब्बे से। मैं किसी की साइकिल उठा के ले आया, छोटी सी 3 पहियों वाली साइकिल थी। तो मुझे मुझे मार भी पड़ी और मुझे वो साइकिल वापस भी करना पड़ी। तो अगर वो मतलब मुझे इनकरेज करते, कुछ ना कहते, तो शायद हो सकता है कि मैं बचपन में छोटी चोरियां करता था वो डाकू बन जाता बड़ा होके। तो बात यह है कि उसको, बुराई को क्या है, उसी वक्त स्नब करना चाहिए, उसी वक्त उसको रोकना चाहिए। तो वह बच्चों का भी खास तौर पे ध्यान रखे कि वो अगर कोई छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे स्कूल गए हैं, कोई पेंसिल रबर रेजर इस तरह की चीजें ले आए, तो उनसे पूछे कि भी ये तेरा नहीं था, ये किसका लेके आया, ये आज तूने वापस करके आने, नेक्स्ट जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह उनको अगर उनको करेक्ट करेंगे तो वो ये लालच में नहीं पड़ेंगे और जो उनका है उसी को वो यानी कि एक तरबियत का एक अमल है। इसी तरह हम देखते हैं कि शॉपिंग करने जाती हैं औरतें, कई दफा वीडियोस लोगों ने डाली हैं कि वो साड़ियाँ और सूट वगैरह इधर उधर अपने बैग्स में इधर, और सेल फोन लोग लेने जाते हैं, वहां से चोरी कर लेते हैं। और आजकल वो क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं, तो लोग मतलब पकड़े भी जाते हैं। तो मतलब बात करने का ये है कि ये एक, जो चोर कहते हैं चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से ना जाए। तो चोर अगर चोरी छोड़ भी दे तो हेरा फेरी से जान छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो चीज हमारी कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए, इससे पहले कि वो ये हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बने, हमें उनको, इन बदरुओं को और इन कौमों को, इन कबीलों को और दुष्ट आत्माएं जो हैं, इनको हमसे, तो हमें इनसे, इनको अपने से दूर करना चाहिए। तो क्या लिखा है, पास यशवा ने कासद भेजे और वो उन डेरों को तोड़े गए और वहां, और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। 23वीं आयत में लिखा है कि वो उनको डेरे में से निकाल कर यशवा और सब बनी इसराइल के पास लाए और उनको खुदा उनके हजूर रखा। तब यशवा और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अकन को और उस चांदी को और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटे और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादिये अकूर में उनको ले गए। और यशवा ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इसराइलियों ने उसे संचार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब
खुदावंद अपने कहर शदीद से बाज आया, इसलिए उसने उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। देखें, ये एक पुराने अहदनामे का एक अहद है जिसका हम जो के जिस इसलिए इसको पुराना अहद कहा जाता है। अहद उस दिन मैं जिक्र कर रहा था कि इसका कॉन्ट्रैक्ट है ना, दो पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा जो होता है, जो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, बट इट इज मोर देन कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज मोर देन अ कॉन्ट्रैक्ट, मोर देन एक मुआहदे से ज्यादा एक उत्तम चीज है। तो ये पहला नियम जो था या पहला अहद जो था खुदा ने जो वो बांधा, वो बकरों और छतरों की कुर्बानी के साथ। दूसरा अहद जो है वो ज्यादा खूबसूरत, उसमें हमें प्यार और प्रेम और माफी की बात मिलती है, क्योंकि वो यस्सु के खून से लिखा गया। वो यस्सु ने खुदा का जो अकलौता या खुदा का जो अजेठा पुत्र प्रभु यस्सु मसीह, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ ਅਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ परमेश्वर ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ही came to sign another contract, जो हमारे साथ एक नया अहद बांधने के लिए इस दुनिया में आया, और वो अहद उसने अपने खून से बांधा। याद रखे कि जो नए अहदनामे के लोग हैं, हम लोग अब उठ के किसी को नहीं मारते, ना किसी को जलाते हैं, ना हम लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, ना तलवारें, ना डांगे, ना सोटे, ना कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा अहद नया अहद है। हम नए अहद के लोग हैं, हम नए नियम के लोग हैं। नए नियम में, पहले नियम में क्या होता था कि देन एंड देयर, उसी वक्त खुदा जो है उसकी अदालत होती थी, और देखे कि उसी वक्त उसने फैसला कर दिया और वो जला दिया सारा कुछ, उसको उसके बैल ये वो। ये नहीं देखा खुदा ने कि ये मेरी कौम के लोग हैं, यानी अकन जो था वो यहूदा के कबीले के में से था, और खुदा ने उसके सारा उसके बच्चों और उसके माल डंगर सब कुछ जो जानवर थे सब कुछ खत्म कर दिया। तो लेकिन नए अहदनामे के लोग, इसलिए हम कहते हैं कि हम फजल के दौर के अंदर, फजल के हैं, यानी कि खुदा मेहर करता है, इस दौर में खुदा रहम करता है, खुदा हमें माफ़ी तक सब चाहता है कि सब लोग माफ़ किए जाएं। और वही, क्योंकि यस्सु ने जो अहद बांधा है वो पहले अहद से जो पहला नियम था उससे ज़्यादा खूबसूरत, और उससे ज़्यादा हलीम, और उससे ज़्यादा अच्छा, और उससे देर पा है, जो कि कभी ख़त्म होने वाला अहद नहीं है, क्योंकि ये बेऐब बर्रे प्रभु यीशु मसीह के खून से बांधा गया। तो जब इसलिए ये अहद जो है और ये नियम जो है ये नहीं टूटेगा और नहीं टूट सकता, और हम इसके ताबे हैं। इसलिए हमें खुदा ने किसी को, यहाँ तक कि हमें दूसरों पर लानत करने के लिए भी नहीं बुलाया। हम दूसरों को पे लानत भी नहीं कर सकते अपनी, देखे मारना तो दूर की बात है, हम लानत के लिए नहीं बुलाए गए, बरकत के लिए बुलाए गए। तो इसलिए ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं आज नए पुराने नियम में, एक्चुअली ये नए नियम की तरफ हमें ये चीजें लेकर जाती हैं। तो नए नियम में क्या है कि प्रेम, माफी जो है वो इसका निचोड़ है, यानी कि नए नियम का, क्योंकि वो यीशु के खून से लिखा गया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि टाइम हो गया है कि अगर मैं इसको अभी इधर ही ख़त्म करता हूँ। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। आज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया। माया को वेलकम करते हैं जो थोड़ा लेट से है, और माया आपको वेलकम। सुशीला माया प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आज हमने जोशुआ का चैप्टर उसका 7वां चैप्टर पढ़ा है।